بچوں نے پیش کیا کہ تربیت بولتی ہے، تربیت بولنی چاہیے۔ یہ تلخیوں پہ دلائل کی برف رکھتا ہے، کشادہ دل ہے سمندر کا ظرف رکھتا ہے، بصیرتوں میں قیامت کا جرف رکھتا ہے، یہ گمراہی پہ ہدایت کے حرف رکھتا ہے، یہ باب وقار ہے روشن ضمیر ہے لوگوں، یہ روشنی کی مسلسل لکیر ہے لوگوں۔ میری مراد جناب عزت مآب خادم فاروقی صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں خادم فاروقی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بات یہ ہے کہ دل خوش ہو گیا ہے اس سکول کے بچوں کی یہ ساری ایکٹیویٹیز جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی ہیں مختلف انداز سے، شہری شائستگی اور تہذیب سیولائزیشن جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس سے بہت دور بیٹھے ایک پسماندہ علاقے میں دریائے راوی کے کنارے اس بے آب و گیاہ جسے کہہ سکتے ہیں ہم اس علاقے میں اتنا خوبصورت منظر، انتظام اور بچوں کے حوالے سے اساتذہ نے جو ایک نقشہ پیش کیا ہے، علامہ اقبال کے وہ جملے ذہن میں آ رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساتھی، اور نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ مایوسی نہیں ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے، خوش ہو گیا ہے اپنے بیٹوں کی اس پیشکش کو، سارے پروگرام کو دیکھ کر، اور مجھے یقین ہے کہ اس قوم کا مستقبل وہ اللہ کے فضل و کرم سے درخشاں ہے، درخشندہ ہے، روشن ہے، اور کیوں نہ ہو جس قوم کا استاد اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر اس کو ادا کرنے میں لگ جائے، اس میں کوئی شک نہیں قوم کا دفاع مسلح افواج بھی کرتی ہیں، جدید ترین اسلحہ بھی ضروری ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر وقت تیاری رکھو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ دشمن سے لڑنے کے لیے، اور بالخصوص ہمارا تو ملک کی پوری دنیا کے کافروں کے لیے ایک چیلنج تھا، بنتے وقت بھی اور آج بھی، اور اس کے خلاف دشمنوں کی سازشیں اور خیالات وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ شہداء کے قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والا یہ ملک قائم رہے گا، اور اس حوالے سے ہمیں ٹھیک ہے تیاری ہماری، اللہ کا شکر ہے ان بچوں نے ہماری آرمی کا وہ جو پروفیشنلزم ہے اس کا بھی اس کی عکاسی بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ہمدردی محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ 28 مئی 1998 کو ڈاکٹر ایوب خان کی شہادت کی انگلی نعرہ تکبیر کے ساتھ خوش ہوئی، اور ہم دنیا میں پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن گئے، جو دشمن کی نظروں میں اس وقت بھی بہت کھٹک رہی تھی، اور آج بھی سب سے زیادہ خطرہ انہیں اسی سے ہے، لیکن اس کے باوجود سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ نہ ایٹمی قوت پر ہے، نہ ہمیں اپنی پروفیشنل آرمی پر ہے، نہ ہمیں جدید اسلحہ پر ہے، نہ غوری شاہین اور ان ساری ٹیکنالوجیز پر ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہم ہر میدان میں دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں، لیکن اگر اس ملک کو مستقل طور پر دشمن سے کوئی سیکیور کر سکتا ہے، حفاظت کا کوئی ضامن ہے تو وہ استاد ہے، اساتذہ، تعلیمی ادارے۔ اور پاکستان جب بنا 14 اگست 47 کو، تو اس کے پیچھے مجھے اس بات پر فخر ہے، استاد نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا آپ
बाकी सारी हैसियतें काबिल फख्र हैं, लेकिन आपने फरमाया मुझे इस बात पर फख्र है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा है। और आपने उस्ताद होने का हक अदा कर लिया। आपके पढ़ाए हुए सबक पूरी दुनिया के लिए रहमतों और बरकतों का सबब है। पाकिस्तान का ख्वाब भी देखने वाला, सियालकोट में पैदा होने वाला एक तालिब इल्म, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है। उसने टू नेशन की 2 कौमी नजरिए का ख्वाब देखा। पूरा एनालिसिस करने के बाद वो भी पहले प्रचारक था उसी नजरिए का, अखंड भारत का, इकट्ठे हिंदुस्तान का। और उसने भी पहले कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इसकी बुलबुलें हैं, ये गुलिस्तान हमारा। और फिर दूसरी जगह वो कहता है कि चिश्ती ने जिस चमन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस जमीन पर वहदत का गीत गाया, और जिसने हिजाजियों से अपना वतन छुड़ाया, इस तरह के उसके अल्फाज है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान की बात करता था। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सब लोग एक हिंदुस्तानी कौम है, नेशनलिस्ट इकबाल था। लेकिन जब उसने कुरान का मुताला किया 1905 से 1908 तक 3 साल जब इकबाल यूरोप में रहा, उसने इस्लाम का और हमारी तारीख का मुताला किया, उसका नजरिया बदल गया, उसने रुजू कर लिया। वो सोचा जो यहाँ के उलमा को भी नजर नहीं आ रहा था, उसने फिर वापस आकर अपने नजरिए से रुजू किया। उसने कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। और ऐ गुलसिताने उंदलस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब बाशियां हमारा। ऐ मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खा हमारा। और सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। और इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। इस कारवान का ज्यादा पैमा होने का बंदोबस्त और ख्याल और सोच मर्दे कलंदर अल्लामा इकबाल के दिलो दिमाग में पैदा हुआ। पाकिस्तान का आइडिया एक उस्ताद ने सोचा था। मैं कहना चाहता हूँ किसी माशरे को बिगाड़ना हो तो उस माशरे के उस्ताद को बिगाड़ दो। किसी कौम को संभालना चाहते हो, एपी टेक्नोलॉजी मैंने कहा बहुत जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मईशत मजबूत होनी जरूरी है। लेकिन अगर उस्ताद अपना किरदार प्रॉपर जो उसके जिम्मे है वो अदा नहीं करेगा तो हम बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं असातिज़ा की इस अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। मुश्किल हालात के बावजूद और सख्त से सख्त होते बदतरीन होते इन हालात के बावजूद उस्ताद अपना फर्ज अदा कर रहा है। और मैं इख्तिसार के साथ उस्ताद के हवाले से कहना चाहूंगा, मुसलमान उस्ताद की 2 जिम्मेदारियां हैं। हिंदू उस्ताद के सारे बच्चे पास हो जाएं, 100% रिजल्ट हो तो उसका रिजल्ट 100% है। मुसलमान उस्ताद के भी सारे बच्चे पास हो जाएं, अच्छे नंबर हासिल करें तो मुसलमान उस्ताद का 50% काम हुआ है। बाकी 50% काम उसका अखलाक संवारना, उसकी तरबियत करना। वो अगर बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतरीन इंसान हो, वो अच्छा इंजीनियर है, दयानतदार हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी भी ओहदे पर बैठा है तो उसकी तरबियत से, ये जो अय्याज खान साहब के बच्चों ने पेश किया कि तरबियत बोलती है, तरबियत बोलनी चाहिए। बड़े ओहदे पर, बड़ी कुर्सी पर बैठा
616 एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा अगर वहां बैठा हो तो याजल हसन, ख्वाजा साहब और सदीक साहब और जनाब सुलेमान तारिक साहब, इन सारे असातिज़ा की दी हुई तरबियत बोलनी चाहिए। अगर ये काम हमने कर दिया तो फिर सब कुछ कर दिया। लेकिन वो जो इकबाल ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, मैं बड़े उहदों पर काम करने वाले असातिज़ा से कहूंगा, जिम्मेदारियों में एजुकेशन के साथ, स्टडी के साथ सबसे अहम जिम्मेदारी तरबियत है, अखलाक संवारना है। इकबाल ने बहुत कुछ हमें कहा, उसने कहा अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। साथ-साथ अपने बेटों से कहना चाहूंगा, इस बात को ज़हन में रखें, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए, क्लास वर्क के दौरान उस्ताद को ये नजरिया हर लम्हा दिमाग में मुस्तहज़र रखना चाहिए कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकदीर भी फितना। अल्लाह से जो ना मिलाए, जो तालीम अल्लाह से दूर करती है, उस तालीम का कम अज कम हमें कोई फायदा नहीं है मुसलमान होने की हैसियत से। इस लिहाज से मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा एहसास है। अगर कहीं कहीं ये खराबी कमजोरी मौजूद है कि एहसास कमतरी है कि मैं उस्ताद बन गया, मुझे वो होना चाहिए था, सब मेरे बेटों जैसे बैठे हैं, मैं कहूंगा बेटा इस सोच को निकाल कर इस तरह फेंको कि उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, इस गंदे अंडे जैसे ख्याल को अपने दिमाग से उछाल दो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम बहुत अजीम इंसान हो, तुम बड़े लोग हो, ये अल्लाह का पसंद और नापसंद है, अल्लाह का इंतखाब है, जिसे चाहे नवाज दे, ये अपना अपना नसीब है। तेरी चौखट का मांगने वाला कौन कहता है गरीब है? उस्ताद कब डी ग्रेड है, उस्ताद कब कम इज्जत वाला है? सबसे ज्यादा इज्जत वाला उस्ताद है। कुरान ने कहा हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले भला बराबर हो सकते हैं? इस सवाल के अंदर ही जवाब है नहीं नहीं, जानने वाले, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है। इसी बात को कुरान ने दूसरी जगह फरमाया हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और देखने वाला, बीना नाबीना कभी बराबर हो सकते हैं? और तीसरी जगह फरमाया क्या रोशनी और अंधेरा बराबर हो सकते हैं? इसका मतलब यह है आप लोग पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, आप बीना हैं और दूसरे लोग नाबीना हैं। आप नूर हैं, बाकी सब अंधेरा है। जहां चोरी का अंधेरा, जहां गीबत का अंधेरा, जहां बदकिरदारी का अंधेरा, जहां जराइम का अंधेरा, आपने रोशन करने हैं चिराग, आपके जिम्मे अल्लाह ने लगाया। और मैंने पहले भी कहा, प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सब हैसियतें बराल बरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सय्यदुल अंबिया, आप इमामुल अंबिया, आप खातिमुल अंबिया, लेकिन आपकी सबसे बड़ी हैसियत इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा। हम खुशकिस्मत हैं, इस पर नाज और मान और फख्र करें और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। राज़िक अल्लाह की जात है, रिज़्क़ हलाल का रास्ता है और माशरे में इज्जत का रास्ता है। मैं आखिर में इस हवाले से फिर शाबाश देना चाहता हूँ स्कूल के असातिज़ा और बच्चों के हवाले से। लबो लहजा अगरचे उस मायार का नहीं है जिस मायार के तलबा मेरे इन सीनियर्स जो बैठे यहाँ पे ग्रेड के हवाले से इनके शागिर्दों का हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत जज्बात का नाम है, मोहब्बत अकीदत और प्यार का नाम है। ये सब कुछ हमें यहाँ से मिला है। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ स्कूल के असातिज़ा का, अपने सब दोस्तों का। और मैं अली हसन साबरी साहब यहाँ बैठे थे, हनीफ खान साहब हैं, सारे दोस्त अहबाब, सारे मौजूदीन बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगा इनकरेज करें, इसको हाईलाइट करें
प्रोजेक्शन दें इस तरह के बच्चों को, इस तरह के ख्यालात को कि हमें इस कौम को एजुकेट करना है और इस्लामी नजरिया और सोच, अच्छा किरदार बच्चों को देना है, वो जहाँ से हो। और मैं अलविदा होने वाले बच्चों के हवाले से कहूँगा, उस उस्ताद और उसके हवाले से शेर ज़हन में आ गया, वो अलविदाई तकरीब है ना, चूंकि 8वीं के बच्चे जा रहे हैं, इस हवाले से साहिवाल के कॉलेज के अंदर एक तकरीब के दौरान आज से कोई 15-18 साल पहले एक प्रिंसिपल साहब ने शेर कहा था, मैं अलविदाई मौके पे आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा था, चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी है कि दिन आ गए जुदाई के। दोनों तरफ के जज्बात यही हैं, जा रहे हैं, लेकिन जाने वाले बच्चों के हवाले से मैं कहूँगा, आप अच्छे इदारों में जाएंगे, लेकिन देखना अपने आप को भूल ना जाना, अपनी हैसियत को मत भूलना, अपनी हैसियत को याद रखना। जो किसी ने कहा था कि शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए, आखिरी शेर कह के इजाजत, इसको ज़हन में रखना है बच्चों ने। शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। इस चीज को भुलाना नहीं, अपने घर को, अपने खानदान को, अपने माँ बाप को, और जहाँ भी जाएं, जैसे यहाँ तरबियत बोली है, 250 का सूट हटाकर 1000 का सूट लेने पर तरबियत ने मजबूर किया है बाप को। ये तरबियत बेटा जहाँ भी आप जाएं, ये तरबियत बोलती रहनी चाहिए। ये बोलेगी, उस्ताद भी जिंदाबाद, स्कूल भी जिंदाबाद, माँ बाप भी जिंदाबाद। लेकिन अगर खरीद लिया गया, दबा दिया गया, करप्शन का शुरू होगा है, अगर उस तरफ चले गए, फिर तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस स्कूल को, इस कौम को, इस उम्मत को जुर्रत, हिम्मत और अज़म का रास्ता और तरक्की और उरूज का रास्ता, इल्म के तालीम गाहों के रास्ते से अल्लाह ताला फरमाए। अल्लाह ऑक्सफोर्ड, म्यूनिख और इसकी बजाय हमें अपना बगदाद, गरनाता, अशबीलिया दोबारा हमें इल्म की तरफ रुजू करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा, चांद देखा नहीं मुद्दत से, तुम जो आओ तो ईद हो जाए। और वाकई ही आज गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 616 के लिए ईद का दिन है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सबक आमोज़ बातों से हमें इनाद किया।